Hello everyone, how are you all? Sir, Good good afternoon. I am afternoon. fine. What about you? I'm also fine, thank you. Good afternoon. In this session, we are going to solve some of the word problem in math session, okay? Nowadays, we are studying subtraction chapter and there is a exercise 4C that is based on the subtraction. And in exercise 4C, there is a word problem. And we have to read the questions and then we have to answer accordingly. So are you all ready for this one? समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है बेटा? Nowadays we are studying subtraction chapter, isn't it? Unmute yourself and respond me whether you all are able to understand or not. आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. What we are studying nowadays? Which chapter is going on? The subtraction. Subtraction. And we have already studied that how to subtract a number from different numbers, even with the regrouping concept. So are you all able to subtract a number or not? How many can do the subtraction? How many can subtract a number from the different number? Okay, I'll check. I'll check today first. First of all, I will check. Let's say there is a number 125, and if you want to subtract 76, and what will be this answer will be known as a sum or difference. Which terms we can use for the answer? What they would be getting? If they subtract 76 from 125, then what we would be getting here? क्या मिलेगा हमें? Yes, बताइए किसको आता है? Who can tell? After subtracting 76 from 125, what we would be getting? क्या बोला जाएगा? इसको सम बोला जाएगा या प्रोडक्ट बोला जाएगा या क्या कहलाएगा? बताइए. Yes, बताइए. I will not take the name. Just you need to tell. Ananya, Vedant, many of you are raising your hand. Answer. This will be known. Different. Yes, difference. This will be the difference. So what is the difference? How much will be the difference? You have to calculate. You have to solve. First of all, who will solve? One by one, I will ask the name. Ananya Singh. Ananya Singh. First of all, you have to tell. Yes, sir. Yes, Ananya. Sir, 5 ones minus 6 ones is equal to not possible. So regrouping 2 times 15 times minus 6 times is equal to 9 times. 1 times minus 1 Pardon, please. Ananya, tell me that please. On which place 6 is there? On which place? Sir, ones. And what about 5? On which place? Sir, ones. Then refer the place accordingly. Actually, you are telling that 15 ones minus 6 tenths. So if it 6 is on the ones place, yes, continue. Sir, 15 ones minus 6 ones is equal to 9 ones. 1 times minus 7 times is equal to not possible. So regrouping 100. 11 times minus 7 times is equal to 4 times. 0 times minus 0 times is equal to 0. 100 minus 100 is equal to 100. Yes. So what is the difference? Sir, 49. 49 is the difference. Good. 49 is the difference. Next, Anushka Jaiswal. Now your turn. Sir, 500 minus 600 is not possible. 500 minus 600, is it on the place of 100 place? Sir, no. Sir, 5 ones minus 6 ones is not possible. You have to
there is another question for you. You have to do this one. Okay, not all. Yes, Sir. Anushka. 0 ones minus 5 ones is not possible. 10 minus 5 is equal to 5. Okay, next. 1 10 minus 2 tenths is not possible. 11 tenths minus 2 tenths is equal to 9. 200 minus 100 is equal to 100. Very good. 0 minus 5 is not possible. So 10. So 0 will take borrow from 2. 0 2 से borrow लेगा. हम ऐसा बोल सकते हैं 0 will take borrow from 2, या ऐसा कर सकते हैं B can regroup the 2 10. तो 2 10 को जब regroup करेंगे then 10 1 plus 0, 10 1 minus 5 1 equal to 5 1. Now एक टेंस आपका उधर चला गया था ना. 1 tenth minus 2 tenths is not possible. तो यहाँ से कैरी गया 100 में से 100 को रिग्रुपिंग करके या 100 से बोरो लिया गया तो 100 इधर गया तो 10 tenths हो गया. 10 tenths plus 1 tenth equal to 11 tenths. 11 tenths minus 2 tenths equal to 9. 9 tenths. 400 minus 100 equal to 1. Anushka is correct. Okay, next Vedant. Now your turn. बेटा अभी आप सबको बहुत ध्यान से देखना है. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है. Let me see that whether Vedant is able to solve this one or not. बाकी लोग भी ध्यान से देखें. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो वेदांत कैसे करते हैं. Yes, Vedant. 4 is not possible. 2 minus 4 is not possible. So we take a borrow from 0 ones. 0 has no 0 tenths. 0 has no tenths. So we take a borrow from 300. Good. बहुत अच्छे. Then 12 minus 4 is equal to 8. 9 minus 0 is equal to 9. 2 minus 1 is equal to 1. okay, the answer is correct. The answer is correct. But how did he find the answer? How did he find the answer? Everybody has to listen carefully. अभी मैं एक बार मैं समझाने जा रहा हूँ. 12 में से 4 गया 8. 9 minus 0 equal to 9. 2 minus 1 equal to 1. वेदांत ने सही किया है. बट बाकी बच्चे एक बार और ध्यान से देखें क्योंकि ये इतना आसान नहीं है. आप लोग को एक बार मैं समझा देता हूँ. क्या होता है बेटा? 2 में से 4, 2 minus 4, 2 तो आपका स्मॉलर है. 2 is smaller than 4, so that means कि 2 से 4 तो माइनस नहीं कर पाएंगे. Then what do you be doing? 2 जब 2 में से जब 4 कम करना है नहीं होगा तो 2 क्या करेगा? बोरो लेगा. तो टेंथ के पास जाएगा, अपने पास वाले से ही तो लेगा बोरो. तो टेंथ के पास तो कुछ भी नहीं है. जब कुछ भी नहीं है तब क्या करेगा टेंथ जो है ना इससे लेकर के देगा. कई बार होता है आपको जब जरूरत पड़ती है तो हमें जब कुछ जरूरत पड़ती है तो हम जो अपने पड़ोसी हैं या अपने जो जानने वाले हैं उनसे कुछ मांगते हैं. और कई बार होता है कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग क्या होता है अगर उनके पास नहीं भी रहता तो किसी और से लेकर के दे देते हैं कि नहीं जरूरत है इसको देना है. तो इन द सेम वे तो जब इससे उधार मांगा तो उसके पास नहीं है तो इसने क्या किया, ये इससे उधार मांगा, ये इससे उधार लेकर के फिर इधर दे दिया. अब देखिए उधार कैसे लिया जाता है, कैसे आता है, कैसे रिग्रुप करते हैं. वी हैव टू थिंक हियर, वी हैव टू लुक इनटू हियर. 2 minus 4 नहीं पॉसिबल था. 0 से रिग्रुप कर सकते हैं तो 0 को रिग्रुप करेंगे हमेशा 0 ही आएगा. 0 के पास कुछ है ही नहीं तो क्या रिग्रुप करेंगे? कुछ भी नहीं. तो क्या करेंगे? 0 जब इससे बोरो लेगा तो 3 में से 1 इधर आ जाएगा. 3 क्या है? कौन से प्लेस पे? 300 है. 300 में से 100 निकलेगा.
60 में से 100 निकलेगा, लेकिन जब आपको पता है 100 इक्वल टू कितना टेंस होता है, 10 टेंस होता है, 10 टेंस। जब 100 यहाँ से निकला और टेंस की जगह पे जाएगा, जब 100 जो है टेंस की जगह पे जाएगा तो 10 कहलाएगा ना, कि 1 ही कहलाएगा, 10 टेंस हो जाएगा, 10। अब आपको बताओ 100 यहाँ से निकला और 10 टेंस की जगह पे आया, तो 100 निकला यहाँ से, टेंस की जगह पे आया तो 10 टेंस बन गया। 10 टेंस और 0 टेंस यहाँ पे पहले से था, तो 10 टेंस और 0 टेंस मिलकर के कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 टेंस और 0 टेंस मिलकर के कितने हो जाएंगे, 10 टेंस हो जाएंगे ना। जब इसके पास 10 हो गया, अब इसके पास जब 10 हो गया तो क्या अब इसको उधार दे सकता है कि नहीं, अब तो 10 हो गया इसके पास, दे सकता है, 10 में से दे 1 दे सकता देगा। है, कर सकता है। चलिए बार बार नहीं बोलना, सिर्फ एक बार। 10 टेंस में से, यहाँ पे 10 में से 1 को उधार दे देगा, 1 ही तो देगा, तो 1 टेंस दे दिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, अगर 10 में से 1 टेंस उसको दे दिया तो कितना टेंस बचा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। 10 में से सिर्फ 1 टेंस दिया है, 10 में से सिर्फ 1 टेंस दिया है, तो यहाँ पे भी 9 टेंस बचा है, ये भूलिएगा नहीं। जिसमें एक उधार दिया था तो यहाँ पे कितना बचा था, 200, यहाँ पे 9 टेंस, ध्यान रखना है। अब 1 टेंस जब यहाँ से चला और ये देखा ये 1 की जगह है, तो आपको पता है 1 टेंस जब 1 की जगह पे जाएगा तो कितने 1 के बराबर हो जाएगा, सर 1 टेंस जो है वो कितने 1 के बराबर होता है। मैं अगर यहाँ पे लिखना हूँ 1 टेंस इक्वल टू हाउ मेनी टेंस, 1 टेंस इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, बोलेंगे ना, जो मैं पूछूं उसको बताया करो। 1 टेंस जब यहाँ से चला तो यहाँ पे 10 मंथ बन गया, अब 10 मंथ जब यहाँ पे आया 10 मंथ होता है, 10 मंथ ये है, तू यहाँ पे है, ये दोनों मिलकर के 12 मंथ होंगे। अब 12 हो गया, 12 में से 4 पे जाएगा, तो 12 मंथ माइनस 4 मंथ इक्वल टू 8 मंथ। अब यहाँ पे आपको पता है कितना बचा है, कितना बचा है, 9 टेंस, सर 9 टेंस, 9 टेंस माइनस 0 टेंस, 9 टेंस minus 0 tens equal to 9 tens. Now what is left here on the 100th place? 200. 200. Sir, 200. 100 minus 100 equal to 100. Very good. Vedant have done a good job. समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. इसी तरीके से और आप सबको भी दिया जाए तो कर ले जाएंगे। ठीक है, अंशु पासवान बेटा आप अपना माइक ऑन करिए। अंशु now you have to solve this one. अंशु चलिए फिर इसको सॉल्व करिए। 5 ones minus 0 ones रुके रहो बेटा, रुके रहो अभी थोड़ा सा मैं कुछ चेंज करूंगा। हाँ आप सॉल्व करिए अंशु। 5 ones minus 0 ones is equal to 5. 2 minus 2 tens minus 3 tens is possible to regrouping. Not possible to regrouping 100. 700 को रिग्रुप करेंगे। हाँ फिर क्या होगा? 700 तो 12 minus 3 is equal to 9. 800 minus 100 is equal to 6. फिर से सोच समझ के बोलिए क्या करना है, ध्यान दीजिए फिर से।
7 8 600 minus 100 is equal to 5. 500। आपको पता है ना, यहाँ से जब इसने बोरो लिया था, इधर से लाया था 700 में से 100 इधर आ गया था ना, अभी 12 में से 3 आपने माइनस किया था। 12 में से 3 कैसे 12 कैसे हुआ था? क्योंकि इसमें से 100 चलाया था इधर, तो यहाँ पे बचा था 6। तो 6 to 100 माइनस 100 इक्वल टू 500। चलो अच्छा है, अंशु भी कर ले जा रही है, अंशु भी कर ले जा रही है। चलिए रौनक पासवान, रौनक सिंह सॉरी, माइक ऑन करिए रौनक सिंह। रौनक सिंह, Sir, 435 minus 126 equal to 6 minus 5 is equal to 1। बेटा रौनक, अब मुझे ईमानदारी से बताइए, आपको बता कौन रहा है? सर कोई नहीं। अभी हम घर पे पीटेंगे, अभी मैंने देखा है चेहरा, मैंने चेहरा देखा है, अभी आकर के दोनों की पिटाई करूंगा। आप ईमानदारी से बताइए कौन बोल रहा है? यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है मुझे, कौन बता रहा है ये बताइए मुझे। आप नहीं बताओगे तो मैं अभी क्लास से बाहर करूंगा आपको। 5 तक मैं काउंटिंग करूंगा, मैं तुरंत बाहर करूंगा। अगर नाम नहीं तुमने बताया, नाम तुम्हें लेना है, मैं 5 तक काउंटिंग करूंगा, मैं तुरंत बाहर करूंगा। 1। सर कोई नहीं है यहाँ पे सर, कोई नहीं की जगह पे अगर आपने नाम नहीं लिया तो मैं पक्का बाहर करूंगा। आप बहुत झूठ बोल चुके। 2। सर देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे कोई नहीं। देख नहीं, मैं आपको बाहर करूंगा, मैं तुरंत बाहर करूंगा। 3। 4। सर चलो मैं बाहर करता हूँ, जल्दी से नाम बोलो, नहीं बाहर हुए। सर कोई नहीं है सर, दिखा सकते हैं आपको हम। नहीं दिखाइए नहीं, आप अपनी माता जी को बोलिएगा, मम्मी ही रहती घर, पापा तो नहीं है ना, बोलिएगा मुझे फोन करेंगे। आपको इतना दिन हुआ पढ़ाते हुए, 6 में से 5 माइनस कर रहे हैं। जो आपको बता रहा है ना वो भी गलत बता रहा है, उसको भी नहीं आता है। जो आपको बता रहा है ना, पहले उसने बोला 6 माइनस 5 इक्वल टू, तब आपने बोला है, वो इक्वल बोल रहा है, तब तुम इक्वल बोल रहे हो। और भी कोई सुना है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं कोई सुना है इनकी बातें? किसी सर सुने हैं आप लोग कि नहीं? सर हम सुने हैं। बेटा सर हम भी सुने हैं। सर हम भी सुने हैं। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग होती रहती है, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग होती रहती है, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग आज देखना। अब मैं आपको आज बाहर करता हूँ, अब आपके घर वाले मिलेंगे तब मैं इसको पहले रिकॉर्डिंग तुम्हारी सुनाऊंगा और तुम भी रहोगे, तब उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। तुम झूठ भी बहुत बोलने लगे हो, तो ये सब तुमने कहाँ सीखा? कोई नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप बहुत झूठ बोल चुके। आप अपने घर वालों से बोलिएगा, बात करें। ओके नेक्स्ट बेटा, कोई बताता है गलत गलत करते हैं। रमा तिवारी जल्दी से सॉल्व करो बेटा। रमा तिवारी। यस सर। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। यस सर। इसको जल्दी से सॉल्व करिए। यस सर। रमा तिवारी, आपको बोर्ड पे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, सबट्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं? सर 5 minus 6 is not possible. सर वी ग्रुपिंग 2, सर 3 से बोरो लेंगे सर, वहाँ आएगा 15। सर 15 minus 6 सर इज इक्वल टू 9। वेरी गुड। नेक्स्ट सर इज इक्वल टू 9।
minus 2 is equal to 0. 2 minus 2 is equal to 0. वेरी गुड। Sir, बाकी 4 लोग माइक बंद minus 1 रखें। is equal to 3. 4 minus 1 equal to 3। गुड, बहुत बढ़िया। बेटा आप अपना माइक बंद करिए। रमा आप अपना माइक बंद करिए। नेक्स्ट अमन गुप्ता, आपकी बारी। अमन गुप्ता जल्दी से माइक ऑन करिए, नहीं तो मैं आपको भी बाहर करूं। Yes, sir. जल्दी से इसको माइनस करिए। अमन गुप्ता। Sir, 0 minus, sir, not possible. 2 से कैरी लेंगे। Sir, 10 minus 5 is equal 5. 1 minus 0 is equal to 1. 5 minus 1 is equal to 4. ओके गुड। गुड गुड गुड। आनंद धर। Yes, sir. आपकी बारी हो जाए। आपकी बारी, बाकी लोग Yes, माइक sir. बंद रखें। आनंद धर, आपको। Yes, sir. अनंत सर, इसको जरा आप सॉल्व करिए तुरंत। 2 minus 5 is not possible. 0 is, सर 0 के पास नहीं है, वो 5 से लेगा। हाँ 10 तो 12 minus 5 is equal to 7. वेरी गुड। 9 minus 0 is equal 9 tenths minus 0 tenths is equal to 9 tenths. ओके 400 minus 100 is equal to 300. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट जानवी बहुत टहल रही है, जानवी पढ़ नहीं रही है। जानवी बेटा अपना माइक बंद करिए। आनंद सर। जानवी अब आपकी बारी। जानवी आपकी बारी। 1 by 1 एवरीबडी हैव टू गिव द आंसर। फिर उसके बाद मैं कुछ और पढ़ाना शुरू करूं। जानवी नहीं बोल रही है। हर्षित चौधरी, सॉरी। Yes, sir. हाँ बेटा जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं दूसरा कुछ पढ़ाऊंगा। Set 2 ones minus 5 ones is equal to not possible. So the grouping to the next place. 0 tenths minus 0 tenths is equal to not possible. So the grouping to the next place. 12 ones minus 5 ones. 7 ones. 9 tenths minus 0 tenths is equal to 9 tenths. 3 tenths minus 2 tenths is equal to 1 tenth. Which is this place बेटा? 4 on which place? 300 minus 200 is equal to 100. वेरी गुड। आपने शुरू में नहीं बोल पाए, कुछ गलत बोला आपने, लेकिन चलिए ठीक है। फिलहाल आंसर यू हैव, यू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द आंसर। दैट इज गुड, बहुत अच्छी, वेल डन। यानी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने बच्चों से मैंने पूछा है, लगभग सिर्फ रौनक को छोड़ के बाकी सारे बच्चों ने सही बताया है। जानवी और राज वर्मा यू नॉट कनेक्टेड वेल। जानवी कोई भी जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में ये चीज तो ये पता चल गया कि यू ऑल नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस। आपको सब्ट्रैक्शन आता है, इवन रिग्रुपिंग कॉन्सेप्ट वाला भी है ना। तो अब इसके आगे की चीजें पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम। एवरीबॉडी हैव टू ओपन द पेज नंबर 48। एवरीबॉडी नीड टू ओपन द पेज नंबर 48 इनटू द बुक। जानवी बेटा, जानवी कम से कम आप बुक निकाल के एक बार पढ़िए तो।
जो मैं कहूँ? जानवी, अभी आपने अपना वीडियो बंद कर लिया, अपना मोबाइल फोन बनाए, हॉरिजॉन्टल व्यू में करिए, सीधा खड़ा है, उसको घुमा लीजिए, फोन घुमाइए। जानवी, बुक आपने लिया है कि नहीं? बुक ओपन किया है कि नहीं? क्यों जानवी? सर पेज नंबर पेज नंबर 4848, पेज नंबर 4848। जानवी, आपके पास बुक है या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ अभी, नहीं तो बाहर कर दूंगा अगर नहीं बोलोगी। जानवी, मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रही हूँ? ये वीडियो बंद कर लिया, फिर ऐसी पढ़ाई होगी? चलिए ठीक है। वेदांत, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 48 ऑफ एक्सरसाइज 4C। 4C का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Bunty has 286 stamps and Neetu has 312 stamps. Who has more stamps and by how much? Okay, Ananya, also you need to read the same question. Sir, Bunty has 286 stamps and Neetu has 312 stamps. Who has more stamps and by how much? Anushka, Sir, Bunty Anushka, you has have to read. Yes, Anushka. Sir, Anushka, read the question. Sir, Bunty has 286 stamps and Neetu has 312 stamps. Who has more stamps and by how much? And by Also, you have to tell the meaning of these sentences. I will ask. It's from Harshit. Harshit बेटा, अपना माइक ऑन करके जरा मुझे बताइए। Yes, sir. Bunty has 286 stamps. इसका मतलब क्या हुआ? What do you understand by Bunty has 286 Bunty stamps? के पास 286 stamps हैं. Okay. The next question from Anshu Paswan. And Neetu has 312 stamps. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नीता के पास 312 स्टैम्प्स था. हैं, HAS हैज लिखा है, हैज या हैव का मतलब है। अगर HAS हैज या हैव के बजाय क्या होता कि तब इसका मतलब थे होते, ये कौन बता सकता है? Who can tell? कि अगर ये बोला होता बंटी के पास 286 स्टाम्प थे के लिए हैज या हैव की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था? Who can tell? Who can tell? How many can tell? वेदांत can tell, और कौन? अनन्या सिंह को भी आता है। ठीक है, सबसे पहले वेदांत बताइए आप। Some was. ओके, अनन्या आप बताइए। was. अगर ऐसा लिखा होता बंटी वाज 286 स्टाम्प, तब इसका मतलब होता है कि बंटी के पास इतने स्टाम्प थे। नहीं, और कौन बता सकता है? दोनों गलत हैं। हैज और हैव की जगह पे अगर हैड होता, क्या होता? HAD होता, हैड होता। तो हैड भी वाज या वर जैसे होता है ना, ये भी पास्ट टेंस में आता है बेटा। आपकी इंग्लिश की मैम ने आपको सिखाया होगा। हैड, बंटी हैड टू, अगर यहाँ पे लिखा होता बंटी हैड 286 स्टाम्प, इसका मतलब बंटी के पास 286 स्टाम्प थे। लेकिन हैड की जगह पे लिखा है अगर हैड, तो बंटी के पास 286 स्टाम्प हैं।
Yes, sir. 286 Yes, स्टाम्प sir. है एंड नीतू Yes, है sir. 312 स्टाम्प, और नीतू के पास कितने स्टाम्प है? 312 स्टाम्प हैं. Who has more stamps? Who has more stamps? Who means क्या होता है जानवी? अनुष्का जायसवाल, who has more stamps? इसका मतलब क्या हुआ? Who has more stamps? अनुष्का. Sir. Who means क्या होता है? WHO who means क्या होता है? अंशु Sir, बताइए. may I tell? अंशु आप बताइए. नहीं अभी वेट करिए. अंशु आप बताइए who means क्या? Sir, कैसे? कैसे? हाउ मीन्स कैसे होता है? रॉन्ग. रमा तिवारी आप बताइए. Who had more stamps? रमा तिवारी. हैंड तो बहुत चाव से उठाई थी. आज तो आपने खड़ा किया था ना. अंशु फिर तुक्का मारने जा रही हैं क्या? बताइए अंशु. Sir, कौन? कौन. वेरी गुड. हु मीन्स कौन. अब इसका मतलब क्या होगा? हु हैड मोर स्टाम्प? अनन्या सिंह बताइए. सर किसके पास ज्यादा हु मीन्स कौन, किसके जो भी है. हु हैड मोर स्टाम्प? ज्यादा स्टाम्प किसके पास है? कौन कौन है? किसके पास है? किसके पास ज्यादा स्टाम्प है? मोर स्टाम्प. एंड बाय हाउ मच? एंड बाय हाउ मच, और कितना सारा. किसके पास ज्यादा स्टाम्प है और कितना ज्यादा, कितना सारा ज्यादा. समझ में आ गया? किसको पता है हु हैज मोर Yes, स्टाम्प? sir. हाउ मेनी कैन टेल? शो मी योर हैंड. हाउ मेनी कैन टेल हु हैज मोर स्टाम्प? बंटी या नीतू. बंटी के लिए यू हैव टू शो वन फिंगर. इफ यू थिंक दैट की बंटी के पास ज्यादा स्टाम्प है, then you have to show one finger. If you think Neetu has more stamp, then you have to show two fingers. Now show your finger. Who has more stamp? Two finger for Neetu, one finger for Bunty. Everybody is showing two fingers. Good. Neetu has more stamp because Bunty has only 286 stamp, but Neetu has 312 stamp. Okay? By how much? इतने सारे ज्यादा हैं. मैं आपको बोलूं ओके डाउन योर हैंड, डाउन योर हैंड. मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 चॉकलेट है और वेदांत के पास 7 चॉकलेट है. मेरे पास 5 चॉकलेट है, वेदांत के पास 7 चॉकलेट है. किसके पास ज्यादा चॉकलेट है? बताइए. सर वेदांत के पास. Sir, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? सर 2. Sir, चॉकलेट 2. ये 2 कैसे आता है? 2 आंसर कैसे आएगा? अब ये बताइए 2 आंसर कैसे आया? क्योंकि 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा. मेरे पास 5 चॉकलेट है, वेदांत के पास 7 चॉकलेट है. ये वेदांत है, ये मैं हूं. अब आपने बोला वेदांत के पास, मैंने पूछा वेदांत के पास मैंने पहले पूछा किसके पास ज्यादा चॉकलेट है? आपने बोला वेदांत के पास. मैंने पूछा कितना ज्यादा है? आपने बोला 2. ये कैसे पता चलेगा? जो जिसका चॉकलेट ज्यादा रहे उसमें ऐसे कम वाले का चॉकलेट कम कर दो, तो बचेगा उतना ज्यादा है. कितना? 7 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2. और यही 2 चॉकलेट वेदांत के पास ज्यादा है. समझ में आया? यस सर. इसी तरीके से नंबर ऑफ चॉकलेट बंटी हैज 286. नंबर ऑफ स्टाम्प, सॉरी चॉकलेट नहीं, नंबर ऑफ स्टाम्प बंटी हैज इक्वल टू 286. नंबर ऑफ स्टाम्प नीतू हैज 312. सो नीतू हैज मोर स्टाम्प. बाय हाउ मच के लिए? हु हैज 312 माइनस 286. जो भी आंसर आएगा नंबर ऑफ स्टाम्प
नीतू हैज मोर, आप ऐसा आंसर लिख देंगे, लिखने जाएंगे कि नहीं? क्यों बेटा लिख पाएंगे ऐसे कि नहीं? बेटा आवाज किसी के यहाँ से बहुत आ रहा है, 1 मिनट के बाद आपका सेशन भी क्लोज होने वाला है। जानिए कि यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही हो, पढ़ती तो है नहीं, खटर पटर करती रहती है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, इट विल बी गिवन एज अ होमवर्क, ओके? अभी मैंने समझा दिया, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो जो नेक्स्ट क्लास होगा कल या परसों, वो तब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, सॉल्व करूंगा आप लोग के सामने कैसे लिखा जाता है इसका आंसर, ओके? समझ में आया बेटा? So that's all for today. Goodbye everyone.